أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسل إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم.
الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے. اس سے پہلی والی کلاسز کے درمیان میں ہم نے سورہ یاسین کی تفصیل دیکھی. سورہ یاسین جسے قرآن کا دل قرار دیا گیا، یہی سورہ یاسین ہے جس کے سلسلے میں کہا گیا کہ جو اس کو صبح پڑھتا ہے وہ شام تک محفوظ رہتا ہے، اور جو شام میں پڑھتا ہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے. اسی سورہ یاسین کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو تاکید کی گئی کہ سورہ یاسین جو شخص اس دنیا سے جانے کے قریب یعنی مرگ الموت کی طرف رواں ہے، ویسے شخص کے سامنے اس سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، اسے نصیحت کیا کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ راہ راست پر آ جائے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سورہ یاسین کا مطالعہ کر رہے ہیں. آخر سورہ یاسین میں ایسی کیا چیز ہے جس کی بنا پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تاکید فرمائی کہ جو شخص اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اس وقت بھی اگر وہ انکار حق پر جمع ہوا ہے تو اس کے سامنے تلاوت کیا کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ راہ راست پالے. آخر ایسی راہ راست پانے والی ایسی کیا حقیقتیں ہیں، ایسی کیا نصیحتیں ہیں جو اس سورہ یاسین میں پوشیدہ ہیں، اس کی ہم تفصیلات دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلی والی ہم نے جو کلاس دیکھی اس کے اندر جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے دیکھا، جس میں انسانوں کو مقصد عظیم کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا گیا کہ تمہارا مقصد عظیم کیا ہے. دوسری طرف کہا گیا کہ اس مقصد عظیم سے جو لوگ بھاگتے ہیں، چاہے وہ سننے والے ہوں یا سنانے والے ہوں، کہا گیا کہ ایسے لوگوں کو توق میں لپیٹ دیا جائے گا. ایک توق وہ جو اس دنیا میں ان کے آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی بصارتوں پر، سب پر مہر لگا دی جائے گی، جس کی بنا پر وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ ان کے آگے بھی ان کے پیچھے بھی ان کو دیوار میں چن دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا جو کمیونیکیشن ہے وہ ان کے دلوں تک نہ پہنچ سکے گا، جس کی بنا پر نہ ایمان ان کے دلوں میں جائے گا اور نہ وہ راہ راست پائیں گے. اور رہ گیا دوسرا تو جس کی طرف کہا گیا کہ جب قیامت کے میدان میں انہیں گھسیٹ کر لایا جائے گا، وہاں ایسی لمبی زنجیروں والی توق ان کے گلوں میں ڈال دی جائے گی جس سے وہ اکڑتے تھے، جس سے وہ منہ بناتے تھے، جس سے وہ پیچھے ہٹتے تھے، ویسے شخص کو گھسیٹ کر اللہ کے سامنے لا کر پٹک دیا جائے گا اور ان لوگوں کو لے جا کر جہنم کی دہتی ہوئی آگ کی طرف پھینک دیا جائے گا. یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو بات کی آخری جو ہم نے کل کلاس میں دیکھی تھی، وہ کہا تھا کہ دو قسم کے افراد ہمارے درمیان رہتے ہیں. ایک وہ لوگ جو دین کو ماننے والے لوگ ہیں، جن کی رغبت رہتی ہے ان کو تلاش کرو اور تبلیغ دین کا حق ادا کرو. اور رہ گئے دوسرے قسم کے لوگ جو ڈھیٹ ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بات کو سن نہیں پاتے. اس وجہ سے ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، اللہ ایسے لوگوں کا معاملات کرتا ہے. یہ کہہ کے آخری بات جو کل کہی گئی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ رب العالمین کے سامنے نامہ اعمال جب پیش کیا جائے گا، وہ 3 طرح کے طریقوں سے اس کے نام اعمال کی جانچ ہوگی، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو کھلی کتاب کی طرح ان کا نامہ اعمال دکھائے گا، اور اس کے نتیجے میں جزا ملے گی یا سزا سے ہمکنار جائے گا. اب آج والی کلاس کے اندر اللہ رب العالمین آیتوں کو آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 32 تک کی آیات میں ایک واقعے کی شکل میں انسانوں کو ترغیب حق کی طرف مائل کیا گیا ہے. سامعین اکرام، قرآن مجید کا جو طریقہ کار رہا ہے، نمبر 1 اس میں نصیحتیں ہیں، اس میں احکامات ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تمام زندگی کے جملہ احکامات موجود ہیں. نمبر دوسرا جو طریقہ کار ہے اس میں انبیاء کرام یعنی پچھلی قوموں کی مختلف کارکردگیاں، جس کی بنا پر وہ راہ حق پر کیسے آئے اور اس کے نتیجے میں انہیں بشارتیں کیسی ملی، اور جو لوگ انکار کرتے رہے اس کے نتیجے میں انہیں کیا سزائیں ملی. یہ دوسرا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کے ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے اور ان تک رسائی کرتا ہے. تیسرا قرآن مجید کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مختلف قسم کی نباتات کی
जमादात की और फल्कियात की मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन देकर अकली दलाइल के जरिए से इंसानों को रुजूए इल्लाह करने पर तैयार करता है और उनके जहनों को और उनके अक़लों को अपील करता है और उसके जरिए से राह रास्त पाने में आसानी पैदा करता है। और चौथा तरीक़ेकार ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत सारी मिसालें देता है और उन मिसालों के जरिए से बताता है कि किस तरह से उन्होंने झुटलाया था और जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ उनके लिए मुआजिब बन गई थी। ये तरीक़ेकार है जो कुरान मजीद के जरिए से इंसानों को, मुझे और आपको तफसीलात बताई जाती हैं। यहाँ जो मिसाल दी गई आयत नंबर 13 से लेकर आयत नंबर 32 तक की आयत में एक मिसाल दी गई है। आइए उसका तर्जुमा सबसे पहले हम पढ़ लें ताकि बात को समझने में, किस्से को समझने में मेरे और आपके लिए आसानी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि इसमें रसूल आए थे। हमने इनकी तरफ 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुटलाया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और इन सब ने कहा कि हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान और खुदा रहमान ने हरगिज कोई चीज नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा कि हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, अगर तुम बाज न आए तो हम तुमको संसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फाले बद तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है, क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई है? असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला ऐ मेरे कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते और ठीक रास्ते पर हैं। आखिर क्यों ना मैं इन बस्ती की बंदगी करूं, इस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, ना इसकी शिफाअत मेरे किसी काम आ सकती है और ना वो मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। आखिरकार इन लोगों ने इसे कत्ल कर दिया। इस शख्स ने कह दिया कि दाखिल हो जा जन्नत में, इस शख्स से कह दिया गया कि दाखिल हो जा जन्नत में। इसने कहा काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मुझे मगफिरत फरमा दी है और मुझे बाइज्जत लोगों में दाखिल कर दिया है। इसके बाद इसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत न थी। बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझ कर रह गए। अफसोस बंदों के हाल पर जो रसूल भी इनके पास आया, इनका वो मजाक उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि इससे पहले कितनी कौमों को हमने हलाक कर चुके हैं और इसके बाद वो फिर कभी इसकी तरफ पलट कर नहीं आए। इन सबको एक रोज हमारे सामने हाजिर हो जाना है। सामीन इकराम, इस तर्जुमे को सुनने के बाद जो मुझे और आपको अंदाजा हो रहा है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाकया बयान किया है। एक बस्ती की तरफ रवाना किया जाने वाले अफराद की तरफ इशारा किया गया जहां दीन हक पेश किया गया और दीन हक को लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था। इस वाकये की तफसील हम तफसील के साथ देखेंगे, मगर इस वाकये के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को बताना चाहता है कि देखो तुम्हारा हाल भी इस तरह का न हो जाए जिस तरह इन बस्ती वालों की तरफ भेजे जाने वाले लोगों की बात का न मानने के नतीजे में अंजाम हुआ। ऐसा तुम्हें नहीं होना चाहिए। ये जो आयतें पेश की जा रही हैं, इन आयतों के जरिए से सूरह यासीन की मुझे और आपको बताया जा रहा है कि लोगों तुम्हारा काम अल्लाह के दीन पर कायम हो जाना, उसमें अकामत दीन की मतलब क़याम के लिए उठ खड़े हो जाना और ताउन फराहम करना तुम्हारा अव्वलीन काम है। जो इस काम से बाज आ जाएंगे, इससे दूर हट जाएंगे, इस काम की अंजाम दही में सुस्ती करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पकड़ लाजिमन करेगा। सामीन कराम, अब इस वाक़े की तरफ आए तो इस वाक़े की तरफ जहां इशारा अल्लाह रब्बुल आलमीन करता है वहां एक रसूलों को भेजने की बात आई है। कुरान मजीद में सारे रसूलों का तस्करा नहीं
نہیں کیا گیا، جبکہ قرآن مجید میں جو دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، ہر بستی کی طرف بھیجا گیا، وہاں کہیں صحف اتارے گئے، مختلف کتابیں اتاری گئیں اور ان کو راہ راست پر لانے کی حتی الامکان کوشش کی گئی، اور رہ گئے چنندہ چند مطلب جو ہے انبیاء کرام جس کا تذکرہ بڑی قوموں میں آتا ہے، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو تذکرہ کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک مثال بستی کی دی گئی اور اس میں کہا گیا کہ وہ وہاں رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے، اور ان رسولوں کو وہاں جب بھیجا گیا تو وہ دو مطلب جو ہے اشخاص تھے جن کو اس بستی کی طرف روانہ کیا گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ بستی کون سی تھی؟ مختلف جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، ائمہ کرام ہیں، اس کی مختلف مطلب جو ہے باتیں کرتے ہیں، مگر قرآن مجید کسی کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ وہ کون سی بستی تھی، کیسے مطلب جو ہے وہ لوگ تھے، کہاں رہنے والے تھے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو انداز کریمہ ہے جو ہمارے سامنے جھلک رہا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ جب وہاں ان لوگوں کو وہاں بھیجا گیا تو ان دونوں افراد کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مطلب جو ہے روایات کے مطابق وہ رسول تھے، اور کسی میں کہا گیا کہ وہ رسول نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، جن کو مطلب جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ بستی بستی گھوم کر دین حق کا پیغام ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہی افرادوں میں سے دو افراد اس بستی کی طرف چلے گئے تھے۔ تو سامعین کرام، بہرحال یہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان میں ایک رسول آئے تھے اور ان کی طرف دو رسول بھیجے گئے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ رسول تھے، رسول یعنی اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے، پیغام رسانی کرنے والے، پیغمبر جسے کہا جاتا ہے، وہ مطلب جو ہے اشخاص تھے جو اس بستی کی طرف بھیجے گئے تھے۔ وہاں بھیجے گئے تو بستی والوں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے پھر مطلب جو ہے دوسرے مطلب جو ہے ایک اور نبی کو ان کے ساتھ مطلب جو ہے فوراً ہی بھیج دیا۔ اس کے باوجود بھی کہا گیا کہ ان لوگوں نے بھی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جو مطلب جو ہے ہمیں ریسرچ کے ذریعے سے، معلومات کے ذریعے سے، تاریخی جھروکوں میں جھانکنے کے نتیجے میں مختلف مطلب جو ہے بنی اسرائیل کی جو کتابیں میسر آئی ہیں ان کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 3 افراد کا تذکرہ جہاں پہ کیا گیا ہے، وہ 3 افراد جو ہے وہ جن کا نام مطلب جو ہے جو لیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ پہلے مطلب جو ہے شخص کا نام صادق تھا، اور دوسرے کا نام صدوق تھا، اور تیسرے مطلب جو ہے جو نبی تھے وہ سلوم کے نام سے مطلب جو ہے جانے جانے والے یہ افراد ہیں۔ اس طرح کے نام ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ کے صفحات سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایات سے ہمیں میسر آتی ہیں۔ خیر، یہ تینوں افراد وہاں پہ گئے اور انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کی مکالمہ بازی بھی مطلب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بستی والوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند مطلب انسان، اور خدا رحمان نے ہرگز مطلب جو ہے کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ تاریخ کے صفحات کو تھوڑا سا مطلب جو ہے الٹ پلٹ کر دیکھیں، ہم نے کئی تفصیلات کے ساتھ، سوروں کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہر دور کے اندر انسانوں نے یہی طریقہ اپنایا، جب بھی کوئی داعی اسلام، کوئی پیغمبر اسلام لوگوں کے درمیان آیا تو انہوں نے اسی طرح جھٹلایا اور کہا کہ تم تو ایک بشر ہو۔ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ آسمان کی طرف سے کوئی فرشتہ اترے، آسمان کی طرف سے خود اللہ رب العالمین اتر آئے، یا آسمان کی طرف سے کوئی انہونی بات آئے، جبکہ اللہ رب العالمین کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بشر ہی کے درمیان، یعنی انسانوں ہی کے درمیان، انہی کے درمیان میں سے رسولوں کو اٹھاتا ہے اور پیغمبر اسلام انہیں بناتا ہے، اور ان رسول اور نبیوں کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام رسانی کرواتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پیغام رسانی انسانوں تک مطلب جو ہے انہیں کرواتا ہے، انہیں کتابیں دیتا ہے، یا پھر مطلب جو ہے انہیں صحفیں دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے تکمیل حق کو مکمل کرنے کی اور شریعت اسلامی مطلب جو ہے اس دنیا میں نافذ کرنے کی اللہ رب العالمین کوشش کرتا ہے۔ مگر انسانوں کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ ہمیشہ مطلب جو ہے ہم نے ہر نبی کے سلسلے میں دیکھا کہ وہ یہی مطلب جو ہے کہتے ہوئے آئے ہیں کہ آپ انسان ہی تو ہیں، ہماری طرح ہی مطلب کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور ہماری طرح ہی مطلب جو ہے رہنے والے لوگ ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 7 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا تذکرہ مطلب کیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے۔ اور پھر اگر دیکھیں گے تو سورہ انبیاء آیت نمبر 3 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
लिए जो अल्फाज कुरैश के लोग और अतराफ के रहने वाले लोग जो मुशरिकीन अरब थे, तो वो लोग जो तस्करा करते थे उसका जिक्र भी इन आयतों में आता है। और ये है कि ये जालिम लोग आपस में सरगोशियां करते रहते हैं कि शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जैसा एक बशर सिवाय मतलब जो है आखिर और है क्या चीज, क्या तुम आंखों देखे इस जादू के शिकार हो जाओगे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को वो समझते थे कि ये जादूगर है नौजुबिल्लाह, और लोगों पर मतलब जो है जादूगरी के जरिए से बात को मनवाता है, मगर वो हक बात तक पहुंचने की बजाय हमेशा मतलब जो है क्रिटिसाइज करते रहे कि ये तो एक बशर की हैसियत रखता है। सामने कराम इतना ही नहीं, नूह अलैहिस्सलाम की तरफ अगर हम लौट कर मतलब तारीख के झरोकों में देखें, कुरान मजीद उनकी कौमों के तस्करा करते हुए भी कहता है, उनका अंदाज भी बिल्कुल मतलब जो है यकसानियत के साथ था। उसमें सूरह मोमिनून आयत नंबर 24 में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ इशारा करते हुए पैगाम इस तरह देता है कि ये शख्स इसके सिवा कुछ नहीं है, एक बशर तुम ही जैसा, अगर चाहता है तो तुम पर अपनी फजीलतें जमाए, हालांकि अगर अल्लाह चाहता तो तुम फरिश्ते नाजिल करता। हमने तो ये बात कभी अपने बाप दादा से नहीं सुनी कि इंसान रसूल बनकर आए हैं। यही वो तरीक़ेकार है, यानी यही वो एतराज है, यही वो हुज्जतें हैं, और यही मतलब जो है क्रिटिसाइज है कि इंसान मतलब जो है शक्ल में वो पैगंबर कैसे हो सकता है, ये सोचते नहीं है, समझते नहीं है, अनहोनी चाहते हैं और आसमान से मतलब जो है फरिश्तों का उतार चाहते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का तरीक़ाकार नहीं रहा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया कराम को जो भेजा गया वो बशर ही की हैसियत से भेजा गया और बशर ही के दरमियान में उनके दरमियान रहा। सामईन कराम, जो बशर की हैसियत से पैगंबर जब जमीन में अवामुन्नास यानी इंसानियत के दरमियान उठता है तो वो उनके जज्बात को समझता है, उनके हालात को समझता है, उनके तरीक़ेकार को समझता है। इसीलिए वो पैगंबर जो बशर की हैसियत से होते हैं वो उनके दिलों तक पहुंचने में, उन्हें पैगाम रसानी पहुंचाने में, उनके तरीक़ेकार के को बदल कर दिरुजुए इल्लाह की तरफ मतलब जो है माइल करने में आसानियां पैदा होती हैं, मगर इंसान समझता नहीं है। सामईन इकराम, कौम आद की तरफ जरा झांक कर देखें तो कौम आद की तरफ भी जो रसूल भेजे गए थे हूद अलैहिस्सलाम, उनको भी जब पैगाम हक पहुंचाने के लिए जब अवामुन्नास के दरमियान गए उनको भी वैसा ही एतराज हुआ था। सूरह मोमिनून आयत नंबर 33 और 34 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ इशारा करता है कि देखो उन्होंने भी वही तरीक़ेकार अपनाया था। तर्जुमा कुछ इस तरह है कि ये शख्स कुछ नहीं है मगर एक बशर तुम ही जैसा, खाता है वही कुछ जो तुम खाते हो, पीता है वही कुछ जो तुम पीते हो। अब अगर तुमने अपने ही जैसे एक बशर की इताअत कर ली तो तुम बड़े घाटे में रहेंगे। देखिए हर मतलब जो है इसके पीछे यही तरीक़ेकार रहा, यही अंदाज रहा और यही एतराज वो करते रहे। यहाँ मतलब जो है हम मुख्तलिफ मतलब जो है अंबिया कराम के कौमों की तरफ देख रहे हैं और कौम समूद की तरफ जरा देख कर नजर उठाकर देखें, वहां सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। सालेह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह का पैगाम लेकर उस इंसानों के दरमियान गए, अपनी कौम को पुकारा, राह हक की तरफ बुलाया, तो उन्होंने भी जो एतराज किया था वो सूरह कमर आयत नंबर 24 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा करता है। कहा गया कि क्या हम अपने ही से एक ऐसे बशर की पैरवी इख्तियार करें, यानी इनका भी यही अंदाज़े करीमा रहा और इसी तरह वो इनकार करते रहे। सामईन इकराम, अंबिया कराम जो दुनिया में जितने भी उतारे गए हैं वो सारे के सारे बिल्कुल मतलब जो है इसी तरह मतलब जो है एतराज उनका रहा और इसी तरह कौमों ने हमेशा इनकार हक किया। आगे चलकर देखें सूरह तगाबुन आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या इन्हें इन लोगों की खबर नहीं पहुंची जिन्होंने इससे पहले कुफ्र किया था, फिर अपने किए का मजा चख लिए और आखिर इनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि इनके पास इनके रसूल खुली खुली दलीलें लेकर आए, मगर उन्होंने कहा कि क्या अब इंसान हमारी रहनुमाई करेंगे, इस बिना पर उन्होंने कुफ्र किया और मुंह फेर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम कौमों के जो एतराज़ात हमारे सामने पेश किए हैं, इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों का अक्ली दलाइल के जरिए से तारीख के झरोकों में झांकने पर मजबूर कर दिया। कहा कि क्या तुमने अपनी पिछली कौमों का अंदाजा नहीं है कि किस तरह से वो तबाह बर्बाद हो गए, किस तरह के अल्लाह के अजाब का शिकार हो गए, किस तरह की उसकी पकड़ का मतलब जो है शिकार हो गए और इसी के नतीजे में उनका अंजाम बद हुआ और जहन्नम की तरफ ढकेल दिए गए और इस दुनिया के अंदर उनकी जिंदगी का यह हाल है कि वो
गुमराह कुन रास्ते मतलब जो है इख्तियार कर लिए, उन्होंने सवाउ सबील को मतलब जो है गुम कर लिया था। उसकी वजह क्या थी? वजह यह है कि रसूल उनके पास आए, हक का कलीमा उन तक आया, रसूलों ने अपनी लंबी लंबी जिंदगी, हर नबी के दौरान में हमने देखे हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक उन्होंने अवामुन्नास के दरमियान पैगाम हक का काम किया था, मगर मुट्ठी भर अफराद उनके मतलब जो है साजी बने, बाकी सारे अफराद मतलब जो है जो दुनिया में थे वो सारी इंसानियत गुमराही का शिकार हो गई थी। अल्लाह ताला फरमाता है इसकी वजह यही है कि उन्होंने रसूलों को खुली खुली मतलब जो है जो दलाइल के साथ आए थे उस पर गौर फिक्र नहीं किया, अकल का इस्तेमाल नहीं किया, सोचो विचार नहीं किया और इनकार हक पर जमे रहे। नंबर दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला कहता है कि लोगों के पास जब हिदायत आई तो कोई चीज इन्हें ईमान लाने से रोकने वाली इसके सिवा न थी कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बशर को रसूल बनाकर भेजा है। यानी यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तफसील बताता है कि रसूलों ने का इनकार जो हुआ है वो सिर्फ इस बिना पर हुआ है, अकल से मतलब जो है आरी लोग हमेशा मतलब जो है इस तरह के गलत मतलब फैसले कर लेते हैं और अपने पास आने वाली कामयाबी के दरवाजों को बंद कर लेते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू होने वाले रास्तों को बंद कर लेते हैं और फिर मतलब जो है गुमराह कुन रास्तों की तरफ बढ़ जाते हैं। सामने इकराम, जो अंबिया होते हैं, जो नबी होते हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर होते हैं, वो पैगाम लेकर आते हैं और वही वो पैगाम जिसके जरिए से हमें मालूम होता है कि किससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता है, किसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है और किसके जरिए से जन्नत मिलती है और किसके जरिए से जहन्नम मिलती है। मगर जब लोग इन दरवाजों को बंद कर लेते हैं, इन नसीहतों को कान धरने से मतलब जो है आरी रह जाते हैं, इसी के वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कल वाली क्लास थी उसमें तफसील बताया कि उनको तोख में लपेट दिया जाता है, इतना सख्त मतलब जो है तो कि उनके आगे से पीछे से दीवारों को चुन दिया जाता है, जिसकी बिना पर वो जो कुछ सुनते हैं वो समझ नहीं आती, जो कुछ देखते हैं वो समझ नहीं आती। इस वजह से जो दिल की जरखेजियत है वो खत्म हो जाती है, वहां बेकार चीजें जमा हो जाती हैं, जिसकी बिना पर वो हुब्बे दुनिया और हुब्बे ख्वाहिशात का बंदा बन बैठता है। सामने कराम, कुरान मजीद मुझे और आपको इंसानों की हिदायत के लिए जो रसूल भेजे हैं वहां पर उसके सिलसिले में सूरह अंबिया आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ इशारा करते हुए नसीहत करता है इंसानों को। तर्जुमा किस तरह है कि हमने तुमसे पहले इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा है जिन पर हम वही करते हैं, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से पूछ लो, और हमने इनको ऐसे जिस्म नहीं बनाया था कि वो खाना न खाएं और न वो हमेशा जीने वाले रहे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके एतराजात का जवाब भी आयत करीमा के जरिए से दिया, कहा कि तुम लोग मतलब जो है ऐसे बशर के उम्मीदवार हो जो खाना नहीं खाता बल्कि वो पीता भी नहीं है, तुम्हारी तरह जिंदगी बसर नहीं करता, नहीं हमारा ये तरीक़ाकार नहीं रहा है। अल्लाह का जो तरीक़ाकार रहा है वो इंसानों के दरमियान इंसानों ही को मबऊस फरमाता है और इन्हीं के दरमियान काम करने के लिए उन्हें बेहतरीन सिफात के साथ आरास्ता करता है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हम देखें बनी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे के सारे अंबिया कराम जिंदगियां गुजारने वाले, बीवी बच्चे रखने वाले और खाते पीते और इन्हीं के दरमियान जिंदगी बसर करने वाले अफराद थे। सामने कराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह फुरकान आयत नंबर 20 में भी इसकी तरफ रोशनी डालता है कि हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजे थे वो सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 95 में भी इशारा करता है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो अगर जमीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो हम इन पर फरिश्ते ही को रसूल बनाकर भेजते। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों के दिलों को मतलब जो है खोलने के लिए वाज़े मतलब जो है दलाइल के साथ ये बात रखता है कि अगर तुम चाहते हो कि फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतरे तो वो फरिश्ते ही होते, क्योंकि हमारे पास फरिश्ते बेशुमार ऐसे हैं जो मतलब जो है इबादत करने वाले हैं, झुके हुए हैं, रुकू में पड़े हुए हैं। तो ऐसे अफराद के दरमियान अगर मुझे इनकी इस्लाह करनी होती तो मैं इनको फरिश्तों ही को मतलब मबऊस करता, उनके दरमियान इंसानों को नहीं भेजता। तुम इंसान हो, तुम्हारी कैफियत को, तुम्हारी फितरत को, तुम्हारे अंदाज को समझने के लिए इंसान ही की जरूरत होती है, इसी वजह से इंसानों को मबऊस किया गया और उसी के जरिए तुम्हारे दरमियान हमने इन रसूलों को भेजा। सामने इकराम, इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी मतलब जो है वाक़े के दरमियान में बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि खुदा रहमान हरगिज़ मतलब जो है कोई चीज नाजिल नहीं किया, तुम महज झूठ बोलते हो। लोग हमेशा मतलब ये तरीक़ाकार अपनाए कि जो भी रसूल आया तो वो इस बात को मानने से इनकार करते हैं और हक की गवाही देने से हमेशा पीछे रह जाते हैं। कुफ्फार और मुशरिकीन के सिलसिले में हमने
हमने मक्का की वो वादी के दरमियान में हमने देखा कि सीरत की तफसील के साथ कि वहाँ कुफ्फार मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से और हक्कानियत को समझने से किस तरह इनकार कर दिया था, और किस तरह से जुल्म पर जुल्म ढाकर इन मतलब जो है ईमान लाने वालों को मतलब जो है रोकने की कोशिश कर रहे थे। सामईन इकराम, अल्लाह ताला फरमाता है कि रसूलों ने इसका जवाब बड़े ही मतलब जो है तहम्मुल के साथ, इस्तकामत के साथ उन्होंने बात को, तो तबलीग का अंदाज है वो हमारे सामने आता है कि उन्होंने पेश कर दिया था। रसूलों ने कहा कि हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। सामईन इकराम, ये आयत करीमा दो चीजों की तरफ इशारा करती है। पहली चीज की ये है कि अंबिया कराम ने वाज़े तौर पर इंसानों को बता दिया कि लोगों सुन लो कि हम इस दुनिया के अंदर जो भेजे गए हैं, हम एक काम के लिए भेजे गए हैं, और वो काम है पैगाम रसानी का काम। अल्लाह की मतलब जो है अहकाम, वो हिदायत और नसीहतें और जिंदगी का तरीक़ाकार किस तरह अपनाया जाए और अल्लाह की पसंद और नापसंद क्या है, इसके इजहार के लिए हम तुम्हारे दरमियान आए हैं और उसे अपनी जिंदगी में बरत कर मतलब जो है बताते हैं कि किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमारा काम इतना ही है, हम हिदायत देने वाले नहीं हैं, तुम्हें ठेल कर ले जाकर जबरदस्ती मतलब जो है नेक काम करवाने वाले नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ इतना है, यही काम हम करने आए हैं। अगर तुम मान लो तो तुम्हारे लिए बेहतरी है, अगर तुम न मान लो तो तुम्हारा अंजाम भी वही पिछली कौमों की तरह, वही पिछले अफराद की तरह होगा जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाबात से दो चार कर चुका है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की वईदों के साथ जहन्नम में डाल चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये पैगाम रसानी का काम हमारा काम है। दूसरा नुक्ता इसमें जो आता है वो है कि इस वक्त अंबिया कराम का खात्मा इख्तिताम हो चुका है, वहां पर मतलब जो है कोई नबी आने वाला नहीं है। अब ये जो जिम्मेदारी पैगाम रसानी की है वो मतलब जो है इंसानियत के दरमियान लोगों को दे दी गई है कि बल्ले वो अन्नी वाला आया, पहुंचा दो अपनी तरफ से एक आयत ही सही। इस मिजदाक में इंसानों को कह दिया गया, जो मारूफ का हुक्म देता है मुनकिर से रोकता है, उसे वो कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो अल्लाह का खलीफा है, वो रसूल का खलीफा है और वो उस किताब का खलीफा है। यानी पैगाम रसानी का काम मेरा और आपका काम है। मुझे और आपको उठकर इस पैगाम रसानी का काम अंजाम देना चाहिए, और मेरा और आपका काम सिर्फ मतलब जो है हमारी जिम्मेदारी है इंसानों को इंसानों के दरमियान उन्हें मतलब जो है पैगाम रसानी पहुंचाई जाए, अपने किरदार के जरिए से, अपनी कौली मतलब जो है जबानों के जरिए से उन तक पैगाम पहुंचाना मेरा और आपका काम है। इसमें अगर हम कोताही करेंगे तो हमारी पकड़ होगी। हम किसी को जबरदस्ती ना ठेल सकते हैं, न जबरदस्ती किसी को मोड़ सकते हैं, न जबरदस्ती किसी को मतलब जो है हक पर कायम रहने के लिए उन्हें जबरदस्ती मतलब जो है ले जा सकते हैं, बल्कि हमारा काम पैगाम रसानी का काम है। जो ये काम करेंगे वो अंजाम खैर तक पहुंचेंगे, जो ये काम न करेंगे वो अंजाम बद तक पहुंचेंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ लाजिमन आएगी और लोगों को मतलब जो है सवाल करेंगे कि हम तक ये शख्स नहीं आया था और हमें ये बात नहीं बताई थी। सामीन कराम, अंबिया कराम हो या अंबिया कराम के बाद उनके जो अफराद कौम हैं जो दीन पर कायम है, उनका काम ये काम है। इस आयत के जरिए से मुझे और आपको इस मतलब जो है मनसबियत की वजाहत मतलब कर दी गई। इसके बाद बस्ती वाले इनका जवाब में जो कहते हैं, इस आयत में आया कि हम तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, अगर तुम बाज न आए तो हम तुमको संसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। सामीन इकराम, हमेशा लोगों का एक तरीक़ाकार रहा है, जब अच्छी चीज होती है तो वो अपने हक में मतलब जो है अच्छा समझते हैं, अगर बुरी चीज हो जाती है तो दूसरों को मौजिब इल्जाम ठहराते हैं। वो बिल्कुल इसी तरह यहाँ मतलब जो है लोगों ने मतलब जो है जो तरीक़ाकार अपनाया वो उसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इशारा करता है कि वो मतलब कहते हैं कि तुम हमारे लिए फाले बद हो, यानी हमारे लिए तुम नहूसत हो, तुम हमारे लिए मतलब जो है खैर की मतलब चीज नहीं बल्कि बद की मतलब जो है तस्वीर हो, जो हमारे लिए हमेशा मतलब जो है खैर नहीं बल्कि बद ले आती है। अगर तारीख के झरोकों में झांक कर कुरान मजीद की आयत को मतलब जो है जरा खंगाल कर देखें तो वहां मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से भी यही मतलब जो है बात लोगों ने मतलब जो है की थी, जो मुनाफिकीन थे जो मक्का मदीने के दरमियान में आपके दरमियान रह रहे थे। सूरह निसा की आयत नंबर 77 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तरफ इशारा किया है। तर्जुमा किस तरह है कि अगर इन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो वह कहते हैं कि ये तुम्हारी बदौलत है। सामीन इकराम, जंग का मैदान हो या कोई खैर की बात हो, वहां हमेशा उन्होंने यही कहा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है और मौजिब इल्जाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराया। और फिर जब भी माले गनीमत की तकसीम आई तो आगे बढ़ आए और कहा कि
हमारी ही वजह से हुआ है। इसी की तरफ यहाँ इशारा किया गया कि हमेशा इंसानों का ये हाल रहा है। इतना ही नहीं बल्कि और आगे चल के देखें तो वहां हम देखते हैं कि कौम समूद ने भी अपने नबी को इसी तरह मतलब जो है कहा था, जहां मतलब जो है सूरह नमल की आयत नंबर 47 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तरफ इशारा करता है। तर्जुमा कुछ जिस तरह है कि हमने तुमको और तुम्हारे साथियों को मनहूस पाया है। सामीन इकराम, ये कौम समूद यानी अपने नबी सालेह अलैहिस्सलाम को इसी तरह के अल्फाज के साथ उनको दुख पहुंचाया था, उन्हें ज़ेक पहुंचाई थी, उन्हें तकलीफ दी थी। सामीन इकराम, इतना ही नहीं बल्कि जो फिरऔन है वहां पर भी हम देखते हैं कि उसका रवैया भी जो था, जिसके तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना कलिमा मतलब जो है अल्लाह का पैगाम उस तक पहुंचाया, जबकि मुख्तलिफ मतलब जो है अजाबात उसकी तरफ भेजे गए और उसके जरिए से उसे पैगाम हक तक पहुंचाने और उसकी तक रसाई के लिए मतलब जो है रास्ते हमवार करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोशिश की, मगर मतलब जो है वो नाकाम के नाकाम रहे। उसकी तरफ भी इशारा मतलब जो है जो किया गया है कि वो किस तरह नबियों को मौजिब इल्जाम ठहराते हैं, वो सूरह आराफ की आयत नंबर 130 में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ इशारा करता है। तर्जुमा इस तरह है कि जब इस पर अच्छी हालत आती तो कहते कि यह हमारी खुशनसीबी है, और अगर कोई मुसीबत उन पर आन पड़ती तो इसे मूसा और इसके साथियों की नहुसत करार देते थे। सामीन इकराम, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमेशा ये तरीक़ेकार रहा है, ये कोई नया अंदाज नहीं है। यहाँ कहा गया कि एक बस्ती का किस्सा जहां नबियों को भेजा गया, 3 अंबिया कराम को भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, और फिर मतलब जो है उनकी बात के सिलसिले में कहा गया कि तुम तो हमारे लिए फाले बद मतलब जो है करार दिए गए हो, क्योंकि तुम मतलब जो है जब भी आते हो हमारे लिए बुरी खबर आती है या हमारे लिए अच्छाई मतलब जो है नहीं होती। पैगंबरों ने इसके जवाब में कहा कि तुम्हारा फाले बद तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है। सामईन कराम, हमारा ये इनकार हमारे नाम आमाल में खराबी का बाइस बनता है। हमारा नजरअंदाज कर देना हमारे नाम आमाल में अल्लाह की पकड़ का मौजिब बन जाता है, और अल्लाह की हिदायत और नसीहतों से मुंह मोड़ लेना हमारे लिए अल्लाह के कहर को और उसके अजाब को पुकारता है। मगर इंसान मतलब जो है ना तकदीर के आशना है और ना इस सिलसिले में मालूमात रखता है। इस बेअक्ली की तरफ सूरे यासीन मुझे और आपको आगाही देता है कि ये वाक़े के जरिए से लोगों अखली दलाइल के जरिए से तुम्हारे सामने बात आ रही है, कान खोल कर सुन लो कि तुम्हारे फाले बद तो तुम्हारे साथ लगी हुई है। तुम इन बातों को जो करते हो तुम्हें नसीहत की गई है, असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। सामीन इकराम, अल्लाह ताला फरमाता है कि असल बात यह है कि तुम भलाई से भागना चाहते हो, हिदायत की बजाय तुम गुमराही मतलब जो है खरीद रहे हो, और हक बातिल का फैसला दलाइल के बजाय तुम अवहाम और खराफात और मुख्तलिफ रसूमात और मुख्तलिफ किस्म की जहनी मतलब जो है तसव्वुरात में गुम होकर तुम उसको इख्तियार करना चाहते हो। ये तुम्हारी अपनी खराबी है जिसकी बिना पर इस दुनिया में भी जलालत का शिकार हो रहे हो, और जब तुम इस दुनिया से वक्त मुकर्ररा के बाद मेरे पास आओगे तो वहां पर भी तुम्हारी पकड़ इसी तरह की हो जाएगी। सामीन इकराम, एक कहते हुए इसी वाक़े को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला कि ऐ मेरे कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी इख्तियार करो, पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते और ठीक रास्ते पर हैं। आखिर क्यों ना मैं इस बस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं इसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, न इसकी शिफाअत मेरी किसी का काम आ सकती है और न मुझे उस छुड़ा सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। सामीन इकराम, इस शख्स का तस्करा किया गया है। कहा जाता है कि इस बस्ती के सिलसिले में तारीख सफार जो मुख्तलिफ बनी इसराइल के तारीख की किताबों के जरिए से मुझे और आपको मुयसर आते हैं, कहा जाता है कि इन्होंने इन तीनों अंबिया कराम को जो इनकी तरफ भेजे गए थे, इन लोगों ने बात को मानने से इनकार कर दिया और इसके जरिए से उन्होंने इन तीनों अंबिया कराम का कत्ल कर दिया। सामीन इकराम, इतना ही नहीं, इसमें एक शख्स का तस्करा किया गया है। एक शख्स जो किसी कोने से किसी दूर दराज मतलब गोशे से भागता हुआ आया और लोगों को कहा कि इन मतलब जो है अंबिया कराम की बात मानो, क्योंकि ये हक बात मतलब कहते हैं, ये कोई उजरत नहीं लेते, कोई इनके लिए नफा मतलब बख्श कोई बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए तड़पते हैं, तुम्हारी मतलब जो है राय हिदायत के लिए आए हुए हैं और तुम्हारी ही मतलब जो है बख्शिश का सामान करते हुए अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा रहे हैं। मैं इसी वजह से इनकी बात मान लिया हूं। इसके सिलसिले में तारीख सफ़ात बताते हैं कि जिस शख्स का जहां तस्करा किया गया है, इसके सिलसिले में कहा जाता है कि इस शख्स का नाम हबीब था और इसका पेशे के सिलसिले
में कहा जाता है कि ये नज्जार यानी लकड़ी का काम करने वाला शख्स था। सामने कराम, ये इब्ने अब्बास और वहाब बिन मुंबा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायात से ये बात मालूम होती है कि जिस शख्स का तस्करा यहाँ पे किया जा रहा है ये शख्स जजामी था और इसका मकान शहर के सबसे आखिरी दरवाजे पर था। और कहा जाता है कि अपने मफरूजा माबूदों से ये दुआ करता रहता था। इसके बाद बेशुमार किस्म के मतलब जो है बुत थे और वो बुत खाने में इन माबूदों के आगे दुआएं मांगा करता था कि मुझे तंदुरुस्त कर दे। इसके सिलसिले में कहा जाता है कि इसने 70 साल मतलब जो है इस अपने गुजार चुके थे। 70 साल का वो बूढ़ा था और ये जो रसूल मतलब जो है जिसका तस्करा यहाँ पे किया जा रहा है वो जब इनके पास आए तो कहा जाता है कि इसी शहर में जहां ये मतलब जो है दूर दराज इलाकों में रहता था वहां से ही मतलब जो है ये अंबिया कराम वहां दाखिल हो गए थे और इस बुत परस्ती करने वाले शख्स से इसकी मुलाकात हो गई थी और अल्लाह ताला की इबादत की तरफ इन्होंने मतलब जो है दावत दी थी इस शख्स को कि इसके बुत खाने को देखा, इसके इबादत के तरीक़ेकार को देखा और फिर मतलब जो है इन तीनों अंबिया कराम ने इसे दीन हक की तरफ बुलाया। तो इसके नतीजे में इस शख्स के सिलसिले में कहा जाता है कि इसने कहा कि आपके पास आपके दावे की कोई दलील और अलामत से सेहत मौजूद है। उन्होंने अंबिया कराम ने कहा था कि हाँ, इसने अपने जिज़ाम की बीमारी मतलब जो है बताकर पूछा था कि आप ये बीमारी को दूर कर सकते हैं क्योंकि वो जिज़ाम का शिकार हो गया था। कहा जाता है कि अंबिया कराम ने कहा कि हाँ, अपने रब से दुआ करेंगे वो तुम्हें तंदुरुस्त कर देगा। इसने कहा कि क्या अजीब बात कहते हो, मैं 70 साल से अपने माबूदों की से दुआ मांगता हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तुम्हारे रब कैसे एक दिन में मेरी हालत बदल देगा। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा रब हर चीज पर कादिर है और जिनको तुमने खुदा बना रखा है इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये किसी को नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सुनकर ये शख्स ईमान ले आया और इन बुजुर्गों ने इसके लिए दुआ की। कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको ऐसा तंदुरुस्त कर दिया कि बीमारी का कोई असर भी बाकी न रहा था। अब तो इसका ईमान और पुख्ता हो गया और इसने अहद कर लिया कि दिन भर में जो कुछ कमाएगा इसका आधा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेगा। और जब इन पर रसूलों पर शहर के लोगों ने यलगार कर दी तो इस वक्त ये खबर को लिए हुए भागा भागा इनके दरमियान आया था और इन कौम को समझाने की कोशिश की थी जो इस आयत के दरमियान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कोटेशन के तौर पर पेश किया है। और अपने ईमान का ऐलान भी इसने इस तरह कर दिया था कि उसने कहा कि उसने वहां पे बाकायदा तौर पर ये कह दिया कि मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। सामने कराम, उन लोगों के दरमियान अपने हक का ऐलान कर देना और बात का इजहार कर देना उन लोगों के लिए मतलब जो है अचंबा हाल था, हैरत ज़दा होने के लिए काफी था कि ये शख्स जो इतनी माबूदों की इबादत करने वाला, बुत खाना रखने वाला और इसमें अपनी 70 साल जिंदगी गुजारने वाला ये शख्स अल्लाह के पैगाम की तरफ कैसे आया। पैगाम पहुंचाने के लिए जब अंबिया कराम इसके दरमियान आए, वो जजाम की जो बीमारी में मुब्तला था उसके सिलसिले में कहा जाता है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ कहा गया कि वही मतलब जो है इन खुदाओं को वो इन खुदाओं का कोई मतलब हिस्सा नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी मतलब जो है शफा देने वाला भी वही है। सामने कराम, ये इंसान को अक्ली दलाइल के साथ सोचने पर इंसान को मजबूर कर देता है क्योंकि जो लोग बुतों की पूजा करते हैं, खबरों की पूजा करते हैं, इसके जरिए से कोई काम बनने वाला नहीं है। ये इंसानों की अकल गवाही देती है, जबकि वो सोचें, गौर फिक्र करें और इस पर मतलब जो है तदब्बुर करें तो इनकी अकल मतलब जो है जरूर गवाही देगी। इस शख्स के सिलसिले में जो तस्करा किया जा रहा है ये हबीब मतलब जो है जिसका नाम है उसने भी इस बात को मतलब मान लिया और इस हक्कानियत की तरफ पहचान लिया और उसने हक का ऐलान कर दिया था। सामने कराम, बस्ती वालों की गिरावट का अंदाजा इन आगे वाली आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है। कहा गया कि आखिरकार इन लोगों ने इसे कत्ल कर दिया। इस शख्स से कहा गया कि दाखिल हो जा जन्नत में। इसने कहा काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मुझे मगफिरत फरमाई और मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल कर दिया। सामने इकराम, किस्सा मुख्तसर ये है कि इस शख्स ने जब मतलब जो है हक का ऐलान कर दिया तो सारे बस्ती वाले इस पर टूट पड़े, इसे मारने लगे, इसको धक्के देने लगे, इसे बुरा भला कहने लगे। इतना मारा कि तारीख बताती है
कि उसकी रूह आसमान की तरफ परवाज कर गई। लोगों ने समझा कि हमने बड़ा काम कर लिया है। अल्लाह ताला इसकी तरफ इशारा करके कहता है कि नहीं, जब ये शख्स कत्ल कर दिया गया, लोगों की मारों से मतलब जो है अपनी जान मतलब जो है अल्लाह के हवाले कर दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस ईमान की बदौलत, उस बढ़ते हुए कदमों की बदौलत और अल्लाह की तरफ रुजू इल्लाह की बदौलत जो इनाम अकराम से नवाजता है, उसकी तरफ इशारा इसमें किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए और फरिश्तों को हुक्म दिया कि जन्नत में इसे दाखिल कर दिया जाए। और वो शख्स का हाल मतलब जो है देखिए, जो लोगों की खैर चाहता है और दाई इस्लाम है, तो ऐसे शख्स की मिसाल यहाँ बताई गई कि वो शख्स का ये हाल है कि जब मतलब जो है जन्नत में दाखिल किया गया, तो उसे मतलब उसने पुकार कर मतलब जो है अपने आप से कहा कि काश ये कौम के लोग, जो लोग मतलब जो है रसूलों को मानने से इनकार करते हैं, हक्कानियत को सामने देखते हुए अपनी बसारत का और अपनी समातों का और अपने दिल की ज़र्क़ियत का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी अक्लों का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे लोगों के सिलसिले में कहा गया कि अगर मेरी मतलब जो है जो मग़फ़िरत की गई है, जो इतने 70 साल की जो गुनाह थे, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इखलास और नीयत की बदौलत, जहां इसके बढ़ते हुए जो कदम निकले थे, इसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे मग़फ़िरत फरमाकर बाइज्जत कर दिया और जन्नत में दाखिल कर दिया। काश के मेरे ये अफराद देख सकते, ये कौम देख सकती और इसकी बदौलत लहरा पा सकती। सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मतलब जो है मिसाल के बाद मैं यहाँ आखिरी मतलब जो है इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए मुझे और आपको नसीहत करता है। इस वाक़े को सामने रखिए और इन अशखास का अंदाज देखिए, कौमों का अंदाज देखिए और उनके हरकत को सामने रखकर देखिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके बाद इसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत न थी, बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझ कर रह गए। सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो मतलब जो है हस्ती है जो सारी कायनात को चला रही है। जर्रा जर्रा उसके सब कब्ज़े कुदरत में है। वो कहता है कुन और वो हो जाता है फयकुन। दुनिया की हर चीज़ उसी के लिए मुसक्कर की गई है और वही है जो इस गर्दिश अय्याम को मुकम्मल कर रहा है। चाहे इंसानों की ज़िंदगी हो, चाहे जानदारों की ज़िंदगी हो, या फल्कियात का निज़ाम हो, या ज़िंदगी के मतलब जो है हर मरहले के सिलसिले में देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो सारी कायनात को चला रहा है। वो किबरियाई का हकदार है और इस किबरियाई को इंसान पहचानता नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि हम इन बस्ती वालों को जो इनकार करते रहे, 3 रसूलों को उन्होंने कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, बल्कि जो शख्स हक्कानियत के साथ अपनी जिंदगी इनके सामने रख कर कहा कि देखो मैं मतलब जो है इन माबूदों की इबादत करता था, तो मैं नुकसान मतलब जो है पा रहा था और मैं मतलब जो है ये उम्मीद रखूं कि ये मेरी शिफात करेंगे और वो शिफात मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा, ऐसा मुमकिनात में से नहीं है। ये कोई मतलब जो है वजन नहीं रखते, ये कोई मतलब जो है अपनी जिंदगी नहीं रखते और कोई इख्तिदार नहीं रखते। ऐसे माबूदों की मैं कैसे मतलब जो है इबादत करूं, ये मतलब जो है वो अंदाज मतलब जो है सामने रखा था, मगर इसके बावजूद उनकी आंखों पर पट्टी की पट्टी बनी रही। हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को भी कुरान के जा बजा मतलब जो है सूरतों में देखा है, जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन मतलब जो है बुतों को तोड़ दिया था और बड़े बुत के मतलब जो है गले में कुल्हाड़ी मतलब जो है रख दी थी। और जब लोगों ने पूछा कि इसको किसने मतलब जो है तोड़ा है, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इस बड़े बुत ने। और लोगों को मालूम हो गया था कि जो बुद्ध जिसकी वो पूजा करते हैं, ना मतलब जो है वो कोई काम करते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो बोलते हैं, ना वो खाते हैं और ना कोई इख्तिदार रखते हैं, मगर इसके बावजूद इनकी अना को चोट लगी थी और इसी वजह से उन्होंने जो काम किया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अलाव में मतलब जो है दहकते हुए अलाव में फेंकने का ऐलान कर दिया था। सामईन इकराम, यही तरीक़ाकार यहाँ पे अपनाया गया। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि आसमान से अल्लाह का कहर जब टूट पड़ता है, जब इनकी मतलब जो है हमेशा इनकारियत और मतलब जो है लापरवाही और फिर इस तरह की मतलब जो है दूरी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर मतलब कहा कि हम एक लश्कर भेज दिया। और इतना बड़े लश्कर की इन्हें जरूरत नहीं थी, बल्कि एक धमाका था जो इनको मतलब जो है बुझा कर रख दिया। तारीख के सफ़ात को खंगाल कर इस आयतों की रो में देखें
कि कहीं मतलब जो है पानी को उबाला गया, जहां मतलब जो है उबल पड़ा, और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उसमें चल निकली थी, जबकि वो इलाका मतलब जो है कोई मतलब जो है दरिया रखने वाला, समंदर रखने वाला इलाका नहीं था। वहां नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को बनाते हुए लोगों ने मतलब जो है ताज्जुब के साथ मतलब जो है उन्हें मजाक का मौजू बना लिया था, मगर वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मतलब जो है इसी मतलब पानी के जरिए से, हुक्म के जरिए से उन्हें खत्म कर दिया था। सामने कराम, कहीं मतलब जो है धमाके हुए थे और कहीं आग के मतलब जो है बारिश हुई थी। किस किस तरह से मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन कौमों को, जो आद है, समूद है और शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, इन सबको मतलब जो है जो खत्म कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बस मतलब जो है एक हुक्म है कुन, और वो हो जाता है फकून फयकून। सामने कराम, इसको समझने के लिए बेहतरीन मिसाल हमारे मतलब जो है पिछले साल ही की तो बात है। क्या हमने कोरोना वायरस को अपने करीब नहीं देखा? कोरोना वायरस का मतलब जो है इस तरह का हमला हमने देखा कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और सारी दुनिया के अंदर लोग परेशान हाल थे, चाहे हुकूमती लेवल पर रहने वाले लोग हों, चाहे मालदार मतलब जो है महलों में रहने वाले लोग हों, या मतलब जो है झोपड़पट्टी में रहने वाले वो गरीब मतलब जो है अफराद हों, हर कोई मतलब इसमें जूझ रहा था और हर कोई परेशान हाल था। इस कोरोना वायरस की वजह से कई मतलब जो है लोगों को हमने अपने हाथों से मतलब जो है मिट्टी में मतलब दफनाया। सामने इकराम, क्या ये मतलब जो है हमारे लिए ये मतलब जो है पैगाम नहीं देता कि अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी चीज को मतलब जो है करने का हुक्म दे दे तो वो सारों को सानों को फना कर देता है, बस्तियों की बस्तियों को उलट कर रख देता है। लूत अलैहिस्सलाम के कौम को हमने देखा था कि जहां पूरी बस्ती मतलब जो है बहरे मुर्दार में मदफून कर दी गई। हमने शुएब अलैहिस्सलाम के कौम को देखा कि सारी की सारी बस्ती मतलब जो है तबाह बर्बाद होकर वहां ऐसा रह गया जहां पीछे कुछ था ही नहीं है। कई ऐसे मतलब जो है बस्तियां जो हमारी आंखों से गुजरती हैं और हम उसे देखते हैं। अगर आज भी मतलब जो है उन नजारों को देखना है तो सऊदी अरब के अगर हम तबूक की तरफ रवाना हो जाए तो वहां समूद की बस्तियां, आद की बस्तियां, शुएब अलैहिस्सलाम की बस्तियां आज भी मुअज्जिबे मतलब जो है इबरत बनी हुई मेरे और आपके लिए मतलब जो है इबरत का सामान पैदा करती है। मगर लोग मतलब जो है ना इस पर गौर फिक्र करते हैं, ना इस पर तदब्बर करते हैं, ना मतलब जो है अल्लाह के दीन की तरफ नहीं आते। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे लिए बस मतलब जो है कहना है कि कुन, और वो हो जाता है फयकून। बस मुझे एक धमाका हुआ और फिर सारे के सारे वो बस्ती वाले जो इन मतलब जो है शख्स की ना बात सुने और ना मतलब रसूलों की बात सुनी बल्कि कत्ले आम करते रहे, खुद ही मतलब जो है अंजाम बद तक पहुंच गए। सामने इकराम, ये कह के अल्लाह ताला फरमाता है कि अफसोस बंदों के हाल पर, अफसोस बंदों के हाल पर, अफसोस बंदों के हाल पर जो रसूल भी इनके पास आया इसका वो मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि इससे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके। सामने इकराम, ये उन लोगों के लिए मतलब जो है बात कही गई कि कहा गया कि क्या तुमने मतलब जो है हमेशा ये तरीक़ेकार अपनाया कि रसूलों को मदा मजाक का मौजू बना लिया, हमेशा मतलब कहते रहे कि वो बशर है, या फिर मतलब जो है मुख्तलिफ तरीके से उन्हें तज़हीक करने की, उन्हें हक़ीर जानने की, उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, मगर हक़ का कलीमा हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद करना है, इसलिए कि उसी की ज़मीन है, उसी का निज़ाम का क़याम होना है, उसी के क़याम के लिए मुझे और आपको मतलब एक काम के तहत इस दुनिया में उतारा गया है। मगर इंसान है कि गफलत का शिकार और अपनी मकसद अजीम से मतलब जो है जो गाफिल है, तो ऐसे शख्स के लिए क्या कहा जाता है। सामने कराम, ये आयत मुझे और आपको कहती है कि अफसोस हम बंदों पर भी है। आज भी दाइया ने इस्लाम बस्ती बस्ती घर घर मतलब जो है लोगों तक पहुंचते हैं, और मतलब जो है ये नेट जो मतलब जो है सोशल मीडिया जो इस दुनिया के अंदर वजूद में आया, इसके जरिए से हमने देखा कि दीन हक का, दीन पैगाम का मतलब जो है जो काम है वो बड़ी बसत के साथ फैलता चला जा रहा है। जो इल्म है वो पानी की तरह, समंदरों की तरह पूरी दुनिया में फैला हुआ है, मगर इंसानों की जिंदगी का हाल अपने दिल के ऊपर हाथ रखे खुद से पूछिए, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने हाथ अपने दिल पे रखूं कि मेरी और आपकी जिंदगी का क्या हाल है। क्या हमने इन आयतों पर अमल करना मतलब जो है क्या छोड़ दिया है? क्या इन आयतों के अहकामात और हिदायत और नसीहतें जो मेरे और आप तक मतलब जो है जो अंबिया कराम के जरिए से आई, क्या इसको हमने कभी माना? क्या इस वक्त जो अपनी अपनी जितनी उम्रें हैं, जितनी हमने गुजारी हैं, इसके सिलसिले में देखिए कि क्या हमने अपनी जिंदगियों के अंदर
इन अहकामात के मुताबिक जिंदगियां गुजारी, तो अगर वो गुजारी नहीं है तो फिर हम उम्मीद अल्लाह से क्या करेंगे? क्या हम उम्मीदें रखेंगे वो हमें इतनी मतलब जो है नाफरमानियों के बावजूद भी जन्नत में दाखिल कर देगा? क्या इसके बावजूद भी हमें अजाबात से मतलब जो है दूर रखेगा? क्या इसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहर मतलब जो है टूट नहीं पड़ेगा? क्या इसके बावजूद भी जहन्नम के रास्ते हमारे लिए बंद कर देगा? अकल है तो हमें सोचने की जरूरत है, अकल है तो सोच विचार करने की जरूरत है, अकल है तो मतलब जो है तदब्बुर करने की जरूरत है। सामने कराम, ये आयत जो आखिरी आयत है, इस ये मेरे और आपके लिए कहती है, अफसोस बंदों पर, तसव्वुर कीजिए कुरान मजीद की आयत मुझे और आपको पर्दे का हुक्म देती हैं। हमने सारी तफसीलात देखी, मगर हमारी जिंदगी में क्या पर्दे के वो अहकामात जो अंबिया कराम की जिंदगी में के बाद जब रसूलों ने जो सहाबा कराम को सुनाई थी, उन्होंने मतलब जो है कपड़े मतलब जो है नीचे के अपने जो लंबा चौगा था उसको फाड़ कर मतलब जो है पर्दा मतलब जो है अपना बना लिया था। क्या मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर इन अहकामात को सुनने के बाद इस तरह का डर और खौफ आया कि जिसकी बिना पर हमने ये तरीक़ेकार अपनाया? क्या झूठ, ग़ीबत, चुगली जो जबानों की मतलब बलाएं हैं, इसको रोकने का हुक्म दिया, तो क्या मेरी और आपकी जबानें डर और खौफ के जरिए से इस तरह रुक जाती हैं? क्या मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी के शोबे जहां पर मुझे और आपको इबादत का हुक्म दिया गया है, इन इबादत से मैं और आप किस तरह मतलब का शिकार हो जाते हैं? किस तरह से मतलब डर और खौफ नहीं आता? सामईन कराम, अल्लाह ताला फरमाता है कि अफसोस ऐसे हाल पर कि उनके पास अंबिया कराम आए, उनके पास दाइयान इस्लाम आए, उनके पास मतलब मुदब्बिर इस्लाम आए, मगर इसके बावजूद लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। मजाक सिर्फ जबानी में इसके जरिए से तज़हीक पहुंचाना नहीं है, बल्कि मजाक नजरअंदाज कर देना है। मजाक कहते हैं उसे टाल मटोल कर देना है, मजाक कहते हैं उसे पसे पुष्ट डाल देना है कि हाँ ये बात ठीक है, मगर फिर भी हम ऐसे के ऐसे रहेंगे। सामईन कराम, अगर ऐसा रहा तो मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि ये आयतें जो पिछली मतलब जो है क्लास में हम देख चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब आसमान पे पहुंचेंगे तो वहां पे नाम अमाल जो पेश किया जाएगा उसे 3 तरीके से दिया जाएगा। तो सामईन कराम, उसमें ये शवाहिद भी होंगे, ये जमीन पुकार कर कहेगी, ये आयतें पुकार कर कहेंगे, ये दिन और रात पुकार कर कहेंगे, ये शख्स था जिसने मतलब जो है इस बंदी ने तमाम मतलब जो है बातें सुनी, तमाम बातों को पढ़ा, तमाम बातों को सुना, मगर इसके बावजूद इसे कोई तब्दीली नहीं आई। जिस्म के आज़ा भी पुकार उठेंगे। कल वाली क्लास में हमने इसके सिलसिले में बड़ी तफसील के साथ हमने अहादीस करीमा के जरिए से मुख्तलिफ मतलब जो है आयतों के जरिए से हमने देखा था कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की पकड़ करेगा। मुझे और आपको डर और खौफ होना चाहिए, मुझे और आपको अपनी जिंदगी के उस अय्याम को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए, वरना यकीन जानिए अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मजाक उड़ाते हैं, क्या उन्होंने नहीं देखा कि इससे पहले कितने कौमों का हम हलाक कर चुके हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मतलब जो है डर और खौफ रखना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर एक चुटकी में अगर फिर से कोरोना वायरस को भेज दे तो कौन सी मतलब जो है वो ताकत है जो इसको रोक सकती है? कौन सी मतलब जो है वो बलाएं हैं जो इसको रोक सकती है? बताइए किसका घर में अंदर, खुद मैं अपनी भाभी का तस्करा करते हुए मैं कहूंगी कि वो घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, कहे जाती आती नहीं थी, तो उनको कोरोना वायरस कैसे लगा? वो कैसे अल्लाह के पास पहुंच गई? अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होता है तो वो कहां से कहां मतलब जो है चीजों को पहुंचाने में और जरिए और असबाब फराहम कर देता है। मुझे और आपको सोचना और समझना और गौर फिक्र करना चाहिए, डर और खौफ पैदा करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि इससे पहले कितने कौमों का हम हलाक कर चुके हैं, इसके बाद फिर कभी इनकी इनकी तरफ पलट कर न आए। इन सबको एक रोज हमारे सामने हाजिर होना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इतना सब सुनने के बावजूद, इतना सब करने के बावजूद, इतना सब पेश करने के बावजूद भी जो लोग पलट कर नहीं आते, अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं लाते, अपनी जिंदगी के अंदर रद्द बदल नहीं करते, इसके सिलसिले में मतलब गौर फिक्र नहीं करते और इसकी बदलाव के सिलसिले में मतलब जो है कोशिशें नहीं करते, अपनी खबर की कार कोठरी को मतलब जो है रोशनी से भरना नहीं चाहते और मैदान हशर में खड़े होने के लिए अपने नाम अमाल को नेकियों से भरना नहीं चाहते, बल्कि हल्ब मजीद का जो नारा है वो दुनिया के ख्वाहिशात और हुब्बे दुनिया और हुब्बे ख्वाहिशात ने उन्हें फना और तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो उन्हें मालूम हो जाना चाहिए, अल्लाह ताला आखिरी मतलब आयत इस सूरह यासीन की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाता है तो इन सबको एक रोज हमारे सामने हाजिर होना है। यानी जान लो कि तुम्हारी मौत तुम्हारा इख्तिताम है और तुम्हारी मुंतकली है, जहां घसीट कर तुम्हें अल्लाह के सामने ले जाकर पटक दिया जाएगा। वहां तुम चाहो या ना चाहो, मौत किसी को मतलब जो है अपने कब्जे से छुटकारा नहीं देती, चाहे
चाहे बेशुमार मतलब जो है एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हों, वहां उस मौत से कोई बचा नहीं सकता। चाहे कितने प्यार करने वाले अफराद मौजूद हों, चाहे औलाद की शक्ल में हो, चाहे रिश्तों की शक्ल में हो, चाहे दोस्तों की शक्ल में हो, मौत से कोई बचा नहीं सकता। और कितने ही पैसे वाले लोग हों, जितनी मतलब जो है मालदारी के साथ भी वहां पे खड़े हुए हों, ये माल भी उनके काम कोई नहीं आता, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जब खींच आ जाती है, पकड़ आ जाती है, मुंतकली का वक्त आ जाता है, तो फरिश्ते वारिद होते हैं और घसीट कर अल्लाह के सामने ले जाकर पटक देते हैं। वहां उस वक्त पहुंचने के बाद इंसानों का बिलबिलाना, इंसानों का इल्तिजाएं करना, हसरत करना और फिर मतलब जो है पछताना कोई काम नहीं देता। सामईन इकराम, आज का ये वाकया मुझे और आपको पुकार पुकार कर कह रहा है, अक्लमंदी यही है कि लोगों उठ खड़े हो जाओ, अपने दीन पर क़याम करो और दीन की तरफ पलट आओ और अपनी शख्सियत पर मतलब जो है गौर करो, एहतसाब करो कि मैं किस हाल पे हूं, क्या मेरे काम, क्या मेरा सोचना, क्या मेरा मतलब जो है उठना बैठना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, क्या वो काबिल कबूल है? अगर है तो मतलब जो है यकीन करिए कि वो कामयाब हो जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर मतलब जो है अपने लिए सुधार का सामान करना चाहिए। आखिरी बात कहते हुए अपनी बात के अख्तिताम पे पहुंचूं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हमारे मतलब जो है खलीफा दुवम है। इनकी शख्सियत के सिलसिले में कहा जाता है कि वो मतलब जिनको जन्नत की बशारत दी जा चुकी थी, ऐसे शख्स के सिलसिले में ये है कि वो अपने नफ्स का मुहासिबा करते रहते थे, हमेशा मतलब जो है उस पर गौर फिक्र करते रहते थे। उनके सिलसिले में आता है कि वो रास्ते में चलते होते और वहां कोई पत्ता सूख कर नीचे गिरा हुआ होता और उस पर मतलब जो है चलते, तो चल चल की आवाज के साथ जब उसके टुकड़े हो जाते, उसको उठाते, अपने हथेली पर रखते और कहते कि ऐ मतलब जो है सूखे पत्ते, तू कितना खुश नसीब है, पेड़ पर था, तूने अपना काम अंजाम दिया, जमीन पर गिर गया और सूख कर जब तेरे पर चल कर तुझे रोंद कर फना कर दिया जाता है, इसके बाद तेरी कोई मतलब जो है खबरगिरी करने वाला नहीं, तुझे कोई पूछ गुछ नहीं। उमर को देखो, उमर कितना बदनसीब है, कितना बदनसीब है, ये कहकर वो रोने लगते और कहते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उमर को पकड़ेगा, उमर को पूछेगा कि उसने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, किस तरह गुजारी और कैसे गुजारी, और उमर कितना बदनसीब है। ये कह के वो पुकार कर कहते कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान कर दे कि सारी दुनिया के लोग जन्नत में जा चुके हैं, सिर्फ एक शख्स बाकी रह गया है, तो मैं समझूंगा कि वो उमर है, इसलिए कि वो उमर हमेशा मतलब जो है पीछे रहने वाला है। और फिर कहा कि अगर मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान कर दे कि सारे मतलब जो है लोग बाहर खड़े हुए हैं और सिर्फ एक शख्स जन्नत में गया हुआ है, तो मैं समझूंगा कि वो पीछे रह जाने वाले लोगों में उमर भी वहां पे खड़ा हुआ है। ये है वह एहतसाब का अंदाज जिसके जरिए से कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं, इसके जरिए से सोचों के दरवाजे खुलते हैं, इसके जरिए से दिलों के दरवाजे खुलते हैं, इसके जरिए से फिक्रमंदी के दरवाजे खुलते हैं, इसके जरिए से अल्लाह का राह रास्त मिल जाती है, सिरात मुस्तकीम मिल जाती है और अल्लाह के करीब पहुंचने में आसानी हो जाती है। जो लोग मेरी और आपकी तरह उम्मीद लगाए बैठते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, हम जरूर मतलब जो है अल्लाह के रसूल की जो है शिफात हासिल करते हुए वहां से जन्नत में जरूर दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल मुझे और आपको जन्नत में जरूर भेज देंगे, ये उम्मीद, ये मतलब जो है उम्मीद कि खबर में मदफून मतलब जो है औलिया कराम हमारी शिफात करेंगे या हमारे बुजुर्ग हमारी शिफात करेंगे, ये उम्मीदें कामयाबी के दरवाजों को बंद कर देती हैं, आगे बढ़ने वाले रास्तों में बेड़ियां डाल देती हैं और आगे बढ़ने वाले हर रास्ते में रुकावट बनकर वो सवाओ सबील को गुम कर देती हैं। सामईन इकराम, इस वाक़े को अपने जहन में रखिए। सूरह यासीन आप और मैं पढ़ते तो रहते हैं, मगर इस सूरह यासीन में यह वाक़या भी है। इस वाक़े के जरिए से इंसानों को दलाइल के जरिए से आंखें मतलब जो है आइस ब्रेकिंग मतलब जो है काम करने वाला ये वाक़या है जो मुझे और आपके सामने पेश किया गया है। क्या मेरी और आपकी आंखें खुल गई? क्या मेरे और आपके दिल के दरवाजे खुल गए? क्या मेरे और आपके सोचने का अंदाज बदल गया? क्या यहाँ मैं और आप मतलब जो है अल्लाह की तरफ कदम बढ़ा चुके और ये कह चुके कि इन्ना सलाती व नुस्की व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन? तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर नहीं है तो इस पर जम जाने के लिए क्या तकदो हो सकती है, अपना मुहासिबा तन्हाई में बैठकर मुझे और आपको करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको सोचने समझने वाली अकल अता फरमाए, सोचने समझने वाला रुझान अता फरमाए, फिक्रमंद होने वाली अकल अता फरमाए और शऊरी एहसासात मुझे और आपको अता फरमाए और इंसानी ज़हनियत को हमेशा जिंदा रहने के लिए अल्लाह से दुआ है कि मुझे और आपको जीता जागता ज़मीर भी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।